ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں اللہ بیٹا دیا تھا. اب سوچو ایک آدمی کو 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد بچے ہوئے تو بچوں سے کتنی محبت رہتی ہے. 10 سال کے بعد مجھے بچے ہوئے, ایک بچے کے پیر میں کانٹا چبھے کوئی باپ دیکھ نہیں سکتا. ایک بچے کے سر میں درد آ جائے کوئی ماں دیکھ نہیں سکتی. ایک بچے کے پیر میں چپل نہیں ہے, گرمی کا موسم ہے, 10-15 kg بھی ہے تو ماں باپ اٹھا کے لے جانے کے واسطے تیار ہوتے ہیں. میرے بیٹے کے پیر میں گرمی بھی نہ لگے. ماں باپ اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں بچہ ہوا. اللہ اپنے کرم سے اپنے قدرت سے انہیں بچہ دیا تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں اللہ ایک خواب دکھاتا ہے, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں, قربانی دے رہے ہیں. تو جو پیغمبر کا خواب ہے وہ وہی ہوتا ہے. پیغمبر کا جو خواب ہے وہ وہی ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے سے پوچھتے ہیں اللہ کے طرف سے مجھے وحی ہو رہا ہے, مجھے خواب آ رہا ہے کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں, قربانی کر رہا ہوں, اللہ تجھے مانگتا ہے. اپنے بیٹے سے ابراہیم علیہ السلام کہتے, قرآن میں اس کا پورا قصہ ہے, تذکرہ ہے, انی ارا فی المنام, بیٹے میں میرے خواب میں دیکھتا ہوں, انی اذبحک, تجھے ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا ترى, تیرا کیا خیال ہے, تو ذبح ہونا چاہتا ہے, اللہ کے راستے میں قربان ہونا چاہتا ہے؟ تو بچہ کہتا ہے قال یا ابت فعل ما تؤمر, ابا جان جو اللہ کا آرڈر ہوا, جو اللہ کا حکم ہوا, مجھے اللہ کے راستے میں قربان کر دو, ذبح کر دو, میں اللہ کے راستے میں قربان ہونے تیار ہوں. قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, انشاءاللہ تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. ابراہیم علیہ السلام بچے کو لے جاتے ہیں, اماں اچھی طرح سے نہلاتی ہے, اچھے کپڑے پہناتے ہیں, عطر لگاتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ ذبح کرنے کے واسطے, قربانی کرنے کے واسطے. ایک بلی کو ہم اگر پالیں گے, بلی مر گئی 2-3 دن تک کھانا نہیں کھانے والے لوگ ہیں. ہم دیکھیں پرشین کیٹ کو پالنے والے, میں بھی بلی کو پالا ہوں, ہمارے گھر میں بھی پرشین کیٹس تھے. میرے بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں جو بلیوں کو پالتے ہیں. جب بلی مر جاتی ہے تو 2-3 دن تک کھانا نہیں کھاتے رو رو کر. ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ذبح کرنے کے واسطے, قربان کرنے کے واسطے لے جا رہے ہیں. جب نکلے قربان کرنے کے واسطے گئے, ان کو لٹایا, چاقو چھری لیے, بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کرنے لگے. اللہ آسمان سے ایک دمبے کو بھیجتا ہے, بچے کو ہٹا دیا جاتا ہے, دمبا ذبح ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے ابراہیم میں تیرا ایگزام لے رہا تھا, تیرا امتحان لے رہا تھا, میں چیک کر رہا تھا تیری محبت تیرے دل میں میری محبت زیادہ ہے یا بیٹے کی محبت زیادہ ہے. تو نے ثابت کر دیا تیرے دل میں بیٹے سے زیادہ, مال سے زیادہ, اولاد سے زیادہ میری محبت ہے. اللہ تبارک و تعالی اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیتے ہیں اور جو دمبا آسمان سے آیا تھا دمبا ذبح کر دیا جاتا ہے, دمبا ذبح ہو جاتا ہے. جب سے لے کے آج تک قربانی چل رہا ہے. اس یاد کو تازہ کرنے کے واسطے, ایمان کو تازہ کرنے کے واسطے اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کو جاری کر دیا. ابراہیم علیہ السلام اپنا مال, اپنی جان, اپنی اولاد اللہ کے راہ میں جو قربانی کرنے کے واسطے تیار ہوئے تھے, جو قربان کر دیے تھے, اس کے برکت سے
इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में, उनके नस्ल में प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला उनकी औलाद में पैदा फरमाया। कितनी बड़ी नेमत और दौलत है। इतने प्यारे पैगंबर को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल में अल्लाह ने पैदा फरमाया। तो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 2 जानवर ज़ुबा करते थे, 2 जानवर, एक अपने तरफ से, एक सारे उम्मत की तरफ से। मेरी उम्मत के कई गरीब ऐसे हैं जो कुर्बानी नहीं दे सकते, अल्लाह उनके नाम से मैं कुर्बानी दे रहा हूँ बोल के हमारे प्यारे पैगंबर अपने नाम से भी कुर्बानी करते थे और सारे उम्मत के नाम से भी एक जानवर कुर्बानी करते थे। आज एक मेन टॉपिक कुर्बानी का आप लोगों को बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। ऑनलाइन भी इंशाल्लाह ये वीडियो क्लिप बनाऊंगा। हमारे गांव में अतराफ में बहुत सारे लोगों को मालूम है। क्या समझते हैं मैं कितने की जगह पे कुर्बानी करने के वास्ते गया, ये बकरा है किसके नाम पे ज़बा करूं? हमारे दादा के नाम से करो मौलाना। किसके नाम से करूं? हमारे बाबा मर गए, बाबा के नाम से करो। किसके नाम से? हमारे अम्मा के नाम से, नानी के नाम से, दादा के नाम से, परदादा के नाम से। हालांकि कुर्बानी पहले अपने नाम से करो, जो जिंदा है उनके नाम से। भूख तुम ना है उनको है, खाना पहले हम खाएंगे बाद में दूसरों को खिलाएंगे। नमाज हमारे ऊपर फर्ज है। दूसरा, अगर कुछ सवाब पहुंचाना है, नफिल नमाजें पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, उनको सवाब पहुंचाओ। कुर्बानी किसके ऊपर वाजिब है? कुर्बानी कौन देना जरूरी है? जरा लोग समझते एक घर में 4-5 आदमी है, एक बकरा ज़बा कर डाले तो पूरों के नाम से बराबर हो जाता है। ये भी गलत। हमारे नाम से नहीं दिया सरकार, पुराने जो मर गए से लोगों के नाम से देना, ये भी गलत। हमारे नाम से देते हुए उनके नाम के साथ भी दूसरा जानवर दे सकते हैं। ये मसला बहुत जरूरी है। तो कुर्बानी किसके ऊपर वाजिब है? कंपलसरी कुर्बानी कौन देना? जिस आदमी के पास 52.5 तोला चांदी या उसका रेट का पैसा है, यानी 50 पर 2 हादा तूला, 50 पर 2 हादा तूला चांदी जिसके पास है, या उस कदर कोई सामान एक्स्ट्रा जरूरत से ज्यादा सुन्ना है, अंगूठियां, चैना, चांदी या जायदाद, अमाउंट, पैसे, जरूरत से ज्यादा प्लाटे, जरूरत से ज्यादा कोई सामान कभी साल में 1-2 बार यूज करने वाले शोकेश में रखे सो, ये जो 50 पर 2 हादा तोला चांदी का रेट से भी ज्यादा अगर किसी के पास है, आज के हिसाब से शायद 40 पर 5,000 के आसपास आता हो रेट। आप लोग जो सुनने के काम करने वाले उन लोगों से रेट मालूम कर लो। इतना अगर किसी के पास जरूरत से ज्यादा पैसा है तो उस आदमी के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अब मैं हूं, मेरे पास 50,000 अमाउंट है और खर्च भी इतना नहीं हूं मैं, खर्च भी नहीं है क्या भी, या मेरे पास सुन्ना है, चांदी है, पूरा रेट डाले तो 50,000 के ऊपर चढ़ जाता, मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब है। 50 पर 2 हादा तोले से ज्यादा बढ़ जाता, मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब है। हमारे घर में हमारे अम्मा के पास भी सुन्ना है, हमारे बीवी के पास भी सुन्ना है, गोल्ड है, हमारे बहनों के पास भी गोल्ड है, उन सब के ऊपर अलग अलग कुर्बानी वाजिब होती है। घर में एक आदमी दिए तो पूरा नहीं होता। अब लोग सोचते हैं मौलाना जानवर 10,000 20,000 है, जरूरत नहीं। 10,000 का जानवर जुबा करो, 15,000 का जानवर जुबा करो, एक बड़ा जानवर ले लो, भैंस ले लो, गाय ले लो, या कोई बड़ा जानवर लेकर 7 आदमी मिलकर कुर्बानी करो, 2-3 हजार में कुर्बानी हो जाती। या मदरसे वाले जो है वो लोग कुर्बानी देते हैं, 3,000 में एक हिस्सा आ जाता है। एक जानवर में, बड़े जानवर में 7 आदमी कुर्बानी दे सकते, उसमें हिस्सा मिल जाओ, 3,000 2,500 3,500 4,000 में कुर्बानी अदा हो जाती। कोई बड़ा जानवर कुर्बानी करना बोलकर जरूरी नहीं। समझ में आ गया कुर्बानी का मसला? जिस आदमी के पास 52.5 तोला
50 पर 2 आधा तुला चांदी का रेट, पैसा भी हो, चांदी भी हो, सुन्ना भी हो, जरूरत से ज्यादा सामान हो, उस आदमी के ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। छोटे बच्चों का नहीं है। 14-15 साल बालिग जो बच्चे हैं उन लोगों पर ही कुर्बानी वाजिब है। छोटे बच्चों के नाम से आस्ती है, गोल्ड है, उन लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर वो कुर्बानी करना चाहे तो नफिल कुर्बानी कर सकते हैं। और एक याद रखो, जो कुर्बानी देता है एक एक बाल के बराबर अल्लाह उसे एक एक नेकी अता करते हैं। जो कुर्बानी देता है उस आदमी को ये जो जानवर है दोज़ख के लिए आड़ बन जाती है, जहन्नम के अंगार से आड़ बन जाती है, दोज़ख के आग से बचाने का जरिया बनती है। और जो कुर्बानी नहीं देता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी के पास ताकत रहने के बावजूद भी, पैसा रहने के बावजूद भी, सहूलत रहने के बावजूद भी जो कुर्बानी नहीं करा, वो हमारे मुसल्ले में न आए, ईदगाह में न आए। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी कुर्बानी नहीं करने वाला अल्लाह और उसके रसूल को पसंद नहीं। इसलिए इंशाल्लाह डिटेल्स और भी कुर्बानी के बहुत सारे मसाइल हैं। कब होना पैसा, मिसाल के तौर पर 3 रोज, ईद का रोज, ईद का बाद का रोज, ईद का 3वां रोज, ये 3 रोज आदमी के पास इतना पैसा होना है तो कुर्बानी वाजिब। इससे पहले खर्चा हो गए उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं। इससे पहले कोई बड़ी चीज ले लिए उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब नहीं। इससे पहले सौदा ला लिए, सौदे के दुकान में खर्च देना, करंट बिल बांधना, पैसे हो जाते, उसके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब नहीं है। ईद के रोज, ईद का 2वां रोज, ईद का 3वां रोज, ये 3 रोज तक जिस आदमी के पास इतना पैसे होते उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। समझ में आ गया ना? अगर समझ नहीं आया तो इंशाल्लाह इसके मसाइल आपको डिटेल्स के साथ इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए, इस कुर्बानी को जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।